ठीक है, और भी कुछ है देख लो। नाउ ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल टू ड्रॉइंग की ड्रॉइंग्स टू कैपिटल, कैपिटल घटा ड्रॉइंग्स क्रेडिट हुआ और नलिफाई। बात समझ में आई? अभी ये सारे क्लोजिंग एंट्रीज है। ओपनिंग एंट्री ओनली फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्लोजिंग इज फॉर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, expenses, everything. Now you go to adjustment entries. What are adjustment entries? They are nothing but normal journal entries, but unrecorded. So at the end of the year you pass, the adjustment entries कहा जाता है उसको. What is the adjustment entry for depreciation? What is the normal entry for depreciation on machine? So what is the adjustment entry of depreciation? Depreciation to machine. Simple. What is the adjustment entry for appreciation? Land to appreciation. Land to appreciation. Land generally appreciates. What is the adjustment entry for outstanding salary? Salary to outstanding salary. What is the adjustment entry for prepaid salary? Prepaid salary to cash नहीं, prepaid salary to salary minus होता है। याद आया? प्रीपेड सैलरी डेबिट, एसेट बढ़ा और सैलरी घटा। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल टू इनकम, इनकम रिसीवेबल टू इनकम, एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्री रिसीव्ड इनकम, income to pre-received income, income to pre-received income. Is this clear? Sorry, what? Cash? नहीं, adjustment entries में यहाँ पे नहीं आया। Unrecorded sales का adjustment entry, goods बेचा, credit, debtor to sales, debtor to sales, debtor बढ़ा, sales बढ़ा, add to sales, add to debtor करते हो ना। Unrecorded purchase की entry, purchase to creditor, goods lost by fire की adjustment entry, loss by fire to goods lost by fire, adjustment entry for goods given as samples, advertisement to goods given as samples. Remember? परचेज की बताओ, परचेज मत लिखो, गुड्स लॉस बाय फायर। इधर आप पूरा गुड्स लॉस बाय फायर लिख सकते, परचेज से माइनस नहीं करते, लिख सकते हो। परचेज इज आल्सो नॉट रॉन्ग, बट बेटर इट इज इफ यू राइट गुड्स लॉस बाय फायर। प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस भी इंक्लूडेड, सारे के सारे माइनस करना। सिंगल जर्नल में चलता है, जब हम स्टार्टिंग में करते थे फाइनल अकाउंट्स के वक्त यूज दिस, लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू loss by theft to goods lost by theft, loss by transit to goods lost by transit, advertisement to goods given as samples, goods withdrawn for personal use का drawings to goods withdrawn for personal use. All of you clear with that? Hello? So remember this very clearly. What are adjustment entries? Adjustment entries are nothing but normal journal entries. कुछ अलग चीज नहीं, बस इतना ही सीखना है। ओपनिंग एंट्री किसका होता है? सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी। क्लोजिंग एंट्री किसका होता है? लायबिलिटी एसेट का तो होता ही है, इनकम और एक्सपेंस का भी होता है। इनकम एक्सपेंस का लॉजिक समझा? डायरेक्ट एक्सपेंस गो टू ट्रेडिंग डेबिट, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल क्रेडिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस इज क्लियर। ट्रेडिंग टू पीएनएल, पीएनएल टू ट्रेडिंग, पीएनएल टू कैपिटल, कैपिटल टू पीएनएल, एंड capital to drawings. This is a closing entry for drawings. And what are adjustment entries? Normal journal entries. Now I've shared that image. You have to solve that. So year ending देख लो, सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ। अच्छा, ये सारे एंट्रीज किस जर्नल में रिकॉर्ड होंगे, किस सब्सिडरी में रिकॉर्ड होंगे? सोच के जर्नल प्रॉपर में। All these adjustment entries will be recorded in which journal? Journal proper. You understood what is journal proper? Can we record this in purchase book, sales book, returns book, cash book, petty cash book?
क्या बचा? तो एक ही बुक बचा है जिसमें ये सारे एंट्रीज रिकॉर्ड होते हैं, दैट इज चेक जर्नल प्रॉपर. कीप दैट इन माइंड. लेट्स स्टार्ट. सॉरी व्हाट? वर्किंग नोट करेंगे ना हर एक का. वर्किंग नोट आएगा फिर एंट्री आएगा. टेक आउट दैट इमेज और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वी हैव टू पास द एंट्री. जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट हो और कुछ 3-4 साइड का जर्नल प्रॉपर बना. नहीं, इसके साथ ही वर्किंग नोट लेगा. See, first one. Tell me what is the year ending? Year ending क्या दिया हुआ है पढ़ो. वर्किंग नोट नहीं, जर्नल का. और 4 साइड का जेपी बना लो बस. 2 मिनट रुकता हूँ. जर्नल प्रॉपर इज जर्नल ओनली. जर्नल दिया हो, जर्नल प्रॉपर दिया, इट इज वन एंड द सेम. साधु जर्नल नरेशन वाड़ू. बट हाउ विल यू कम टू नो कि ये एंट्रीज करने हैं? क्वेश्चन में दिया होगा पास ओपनिंग एंट्री, पास क्लोजिंग एंट्री या पास एडजस्टमेंट. ये क्लियर कट दिया हो, देख के ही आपको पता चलेगा. नहीं, ये संडे वाले पेपर में नहीं. संडे वाले पेपर में ओनली 2 सम्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड 6 मार्क्स ऑब्जेक्ट. 12 एंड 6. 12 मार्क का 2 सम और 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव. 1.5 घंटे का पेपर. 1.5 hours, 2 sums of final accounts and 6 marks of objective. टैली नहीं हुआ तो 4 मार्क जाएगा. 12 में 8 में 4. जीपी, एनपी, कैपिटल और फाइनल. जीपी सही है तो 3 जाएगा. एनपी से गलत है तो 3 जाएगा. कैपिटल से गलत है तो 2. बैलेंस शीट टोटल रॉन्ग है तो 1. चलो, टैली हैज गॉट 4 marks. 8 marks are for the problem. ऐसे 9 होते हैं, but I can just now. 12, 6. 35 to 40 minutes will get per sum. बाकी ओके. बहुत टाइम नहीं है बेटा, टैली होना चाहिए फर्स्ट. हाँ, 20 मिनट में पोस्टिंग. 5 मार्क कॉलम, 5 मार्क टोटलिंग, 5 मार्क मार्किंग और 20 मार्क में सब. 5. टैली के लिए 5 मिनट. व्हाट? सैटरडे क्लास है. पास ओपनिंग एंट्री पहला वाला पढ़ो. ध्यान दो यहाँ पे सब लोग गाइस. पास ओपनिंग एंट्री दिख रहा है आपको? पास ओपनिंग एंट्री. बताओ व्हाट इज कैश, एसेट और लायबिलिटी? बैंक बोलो. अकाउंट रिसीवेबल. व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल? डेटर. एसेट. इन्वेंटरी एसेट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
Liability. Prepaid expenses, asset. Goodwill, asset. Account payable, liability. Loan taken, liability. Investments, asset. Leasehold premises. So what is the format of opening entry? पहले asset. So cash account debit. Inventory means stock. एग्जाम में फाइनल्स में आएगा. सिंगल एंट्री नहीं है ना. बैंक ये सिंगल एंट्री नहीं है, जर्नल प्रॉपर फाइनल अकाउंट का पार्ट. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट. जर्नल ये खाली ओपनिंग क्लोजिंग और एडजस्टमेंट एंट्री है. व्हाट इज इन्वेंट्री गाइस? इन्वेंट्री इज एसेट, स्टॉक. इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक. Then you have prepaid expense 1000. Then you have goodwill 5000. Then you have investment 6000. Leasehold premises 5000. 2, you have outstanding expenses 2000. 2, you have account payable. What is account payable? Account payable मतलब क्या? Creditors. Then you have to loan taken and you have last में what? Your opening entry is incomplete without one thing, capital. So to capital account. Narration होगा being opening entry past. Being opening entry past. $36,000. आ रहा है कितना? चेक. Is it 36? Debit minus credit 36. Hello. Bila. That's how you pass the opening entry. Sorted? 36 मिला debit minus credit. तो क्वेश्चन में क्लियर कट दिया होगा क्या करना है. ओपनिंग करना है, क्लोजिंग करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है. जर्नल में ही पास करनी है आपको ये सारे. ठीक है. सेकेंड वन पर राइट फास्ट ब्रो. आगे पीछे देखने में तेरा आधा टाइम निकल जाए. फिर तो प्रोसेस करता है, तो बोर्ड पे देखता है. आगे पीछे देखने का ही नहीं, द फोकस ऑन राइटिंग. बोलो क्या सैटरडे को ये कंटिन्यू करोगे क्या? खत्म आज ही पूरा इमेज आज सॉल्व करना. सैटरडे सिंगल एंट्री. हाँ एक्सप्लेनेशन और सम स्टार्ट हो जाए. तुमको एबीटी में है सिंगल एंट्री. So important. I saw that. सब मेमो सब भेजो. भेजा पूरा तो कर तो लिया है चैप्टर. 7, 8, 9 कुछ दिया है कॉलेज में. सब तो भेजा. चेक और सब बना देखा. तो किया तो था हमने क्लास में. चेक्स बनाए, इनवॉइस शीट दिया था. इनवॉइस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक्स. बहुत वो शीट है आपके पास तो ग्रुप में भेज दो. उसका वीडियो ही शेयर कर देता हूँ. शीट का पीडीएफ शेयर कर. शीट का पीडीएफ और लेक्चर वीडियो दोनों शेयर कर डिवाइस. सेकंड वाला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिल्कुल मिस मत करना सर. तो अभी से पढ़ने का चालू कर. आज वैसे भी कुछ होमवर्क नहीं आने वाला. बैंक ओडी
3,000. Income, what is bank body, asset or liability? Income receivable, asset. Income received in advance, liability. Customer, asset. Supplier, liability. Patents, assets. Pre-owned property, assets. Bills receivable, assets. Bills payable, liabilities. Pass closing. You know how to pass closing entry? उल्टा. Liabilities, capital to asset. तो इसलिए अभी उल्टा हो जाएगा. बंद कर रहे हो तो liability will be debited and assets will be credited. So start with bank OD is I think 3,000. Then income received in advance, that is 2,000. Supplier is 4,000. Bills payable is 1,000 and capital पता नहीं है, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 2. Income receivable, that's 1,000. 2. Customer, that's 10,000. 2. Patents, 5,000. 2. Freehold property, 4,000 it is, right? And 2. Bills receivable, 2,000. Get the value of capital. Eleven. Debit minus credit. 12,000. Please check. Liabilities account debit, capital account debit to assets account. Liabilities, capital to assets. Liabilities, capital to assets. Check. फर्क समझा ओपनिंग और क्लोजिंग में? Did you understand? Opening and closing, hello? Villa? Opening is asset to liability to capital. Closing is liability capital to asset. Third entry. Past closing entry. Third. Past closing entry. वापस पूछा है closing entry. देखो. हाँ? Amount नहीं दिया चलेगा. Without amounts will do. खाली entry ही है यहाँ पे तो. आगे amounts भी आएंगे. Purchase return. Just now we discussed the closing entry for purchase return. अरे ओ सॉरी परचेज और रिटर्न. परचेज का क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? ट्रेडिंग टू परचेज. बराबर है. रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न का याद है? सेल्स टू सेल्स रिटर्न याद आया? सेल्स कम हुआ, सेल्स रिटर्न क्रेडिट. सेल्स का क्या है? सेल्स टू ट्रेड. रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न का क्या था? परचेज रिटर्न टू परचेज. वेजेस का ट्रेडिंग टू वेजेस. कैरेज का ट्रेडिंग टू कैरेज. सैलरी का पीएनएल टू सैलरी. एडवर्टाइजिंग पीएनएल टू एडवर्टाइजिंग. हीरा को समझ रहा है? डेप्रीशिएशन पीएनएल टू डेप्रीशिएशन. डिविडेंड डिविडेंड टू पीएनएल. रॉयल्टी पेड ट्रेडिंग टू रॉयल्टी. फ्रेट एंड ड्यूटी ट्रेडिंग टू फ्रेट एंड ड्यूटी. अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो. ट्रेडिंग डेबिट अलग, ट्रेडिंग क्रेडिट अलग, पीएनएल डेबिट अलग, पीएनएल क्रेडिट अलग, और परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न. 6 पार्ट्स में करने का हमेशा. कितना पार्ट्स? 6.
तो ट्रेडिंग डेबिट अलग से क्लब कर सकते हो, आपको सबका अलग अलग करना है, सबका अलग अलग बांधना नहीं, ज्यादा एंट्रीज हो जाएंगे। अदरवाइज ग्रुप करना है तो कैसे ग्रुप करना है, ट्रेडिंग डेबिट वाले अलग, ट्रेडिंग क्रेडिट वाले अलग, पीएनएल डेबिट वाले अलग, पीएनएल क्रेडिट वाले अलग, परचेज रिटर्न अलग और सेल्स रिटर्न अलग। बात समझ में आई? चलो तो पहले ट्रेडिंग डेबिट वाले कर लेते हैं। तो क्या होगा, ट्रेडिंग डेबिट टू व्हाट, परचेज है, वेजेस है, कैरेज है और फ्रेट एंड ड्यूटी। मिला? दिस इज योर एंट्री फॉर ट्रेडिंग डेबिट। इसका नरेशन होगा बीइंग क्लोजिंग एंट्री आपने वेजेस के बाद क्या पास कैरेज। क्वेश्चन में दिया है ना, डिड यू गेट दिस? यही था ना, और है कुछ ट्रेडिंग डेबिट वाले, देख लो लिस्ट में है और कुछ रॉयल्टी भी है। फ्रेट एंड ड्यूटी, कैरेज, वेजेस, रॉयल्टी भी। Narration is being closing entry पांच आइटम्स है, परचेज, रॉयल्टी, कैरेज, फ्रेट एंड ड्यूटी एंड वेजेस। ये हुआ ट्रेडिंग डेबिट वाला ग्रुप खत्म। ट्रेडिंग क्रेडिट वाले में क्या है, तो एक ही आइटम है सेल्स, तो क्या होगा एंट्री, सेल्स टू ट्रेड, ये भी खत्म। फिर पीएनएल डेबिट में क्या किया, इसका नरेशन है? सेम बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास, सबका सेम बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास। सर तो हर एक में अलग अलग नरेशन। हाँ, जितना एंट्री जितना नरेशन। फिर नेक्स्ट क्या होगा, पीएनएल का बताओ। पीएनएल डेबिट में क्या क्या जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डेप्रीसिएशन, सैलरी और कुछ, एडवर्टाइजमेंट, डेप्री, सैलरी, दैट्स इट। बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास, इसको ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं। क्लोजिंग एंट्री या फिर ट्रांसफर एंट्री इज वन एंड द सेम। These are getting transferred to trading and PN. तो ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री, कंफ्यूज मत होना।